غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 42ویں روز بھی جاری ہے۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی وحشیانہ بمباری نے فلسطین میں شہادتوں کی داستان رقم کر دی ہے۔ بمباری میں 76,000 رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جبکہ شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 4,660 بچے، 3,000 سے زائد خواتین اور قابض فوج کے المغازی میں فضائی حملے کے دوران مزید 9 افراد بھی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 26 اسپتال مکمل طور پر تباہ ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں میں 29,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے، جن میں برطانیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سٹینڈرز 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنرل پیٹرک دیگر مصروفیات کے ساتھ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملیں گے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق یہ معمول کی دفاعی مصروفیات کا دورہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ دفاعی مصروفیات اہمیت کی حامل بھی ہیں۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں سیفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں سابق وزیر اعظم، چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سیفر کیس کی سماعت ملتوی کی گئی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سفارتی سیفر گمشدگی کیس کی سماعت کی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے الزام میں مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ مونس الہی نے خود کو روپوش کر رکھا ہے۔ مونس الہی پروسیکیوشن کے الزامات میں عدالت میں پیش ہونے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ اشتہاری کی کارروائی کا 30 روز کا وقت پورا ہو چکا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ عدالت مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا حکم دیتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بیدیا روڈ پہنچ گئے۔ انڈر پاس کے سائڈ روٹس پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ۔ محسن نقوی نے اریل صبح بیدیا روڈ کا دورہ کیا۔ انڈر پاس کے دونوں اطراف سڑکوں کی تعمیر کے کام کا معائنہ کمشنر لاہور ڈویژن اور ڈی جے ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا اور کانٹریکٹر نے سڑکوں کی تعمیر کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 10 روز میں سائڈ روٹس کو ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ ملک بھر میں ریلوے اراضی پر غیر قانونی قبضے کی تفصیلات سینٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے ملک بھر میں ریلوے کی 13,974 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ریلوے کی 5,512 ایکڑ زرعی، 3,309 ایکڑ رہائشی، 769 ایکڑ کمرشل اراضی پر مافیا نے غیر قانونی قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہفتے کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع باعث محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 18 نومبر بروز ہفتے کو 10 اضلاع میں چھٹی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ قصور، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں سرکاری اور نجی اسکولز بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی اسموگ کے تدارک کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا پلان تیار کر لیا ہے۔ دوسری جانب لاہور شہر آج پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 343 ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اور IMF سے ایک روز قبل ہوئے معاہدے کے اثرات آج بھی امریکی ڈالر پر نظر آ رہے ہیں۔ انٹر بینک میں آج ڈالر مزید سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے سستا ہو کر 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 62 پیسے کا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج آغاز میں ہی کاروبار کا مثبت رجحان نظر آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 102 پوائنٹس کے اضافے سے 57,499 پر آ چکا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 57,397 پر بند ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ وزارت دفاع نے آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی، جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعہ 49(4) بھی بحال کی جائے۔ اپیلوں پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع دیا جائے۔ وزارت دفاع کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے لاہور کے علاقائی ڈیفنس میں کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کے واقعے میں دفعہ 302 شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر چیف ٹریفک آفیسر اور SSP آپریشنز عدالت میں پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ ڈیفنس کار حادثہ انتہائی افسوسناک ہے، بتائیں لاہور میں کتنے لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جس پر CTO نے عدالت کو بتایا کہ لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے، جن میں سے صرف 13 لاکھ افراد کے پاس لائسنس موجود ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو کوئی اپنے آپ کو جج کا بیٹا، کوئی وکیل اور کوئی صحافی کہتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیسے بغیر لائسنس گاڑیاں چل رہی ہیں؟ بتائیں ڈیفنس واقعے کے بعد بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے کتنے افراد کے خلاف کارروائی اب تک عمل میں لائی گئی؟ CTO نے کہا کہ بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے 919 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ رواں سال 14 لاکھ افراد کو لائسنس جاری کیے گئے۔ پولیس نے اپنے جواب میں کہا کہ ملزم افنان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گاڑی کے مالک کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افنان کے والد کی گرفتاری کے لیے رات گئے چھاپے مارے گئے۔ عدالت نے کہا کہ بغیر لائسنس کی گاڑی رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ بعد میں جسٹس علی ضیاء باجوہ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کہ کوئی بھی شخص لائسنس کے بغیر گاڑی پر نہ آئے۔ ہر چوک میں ہر سگنل پر پولیس کی نفری تعینات کی جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی نے پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ محسن نقوی نے IG پنجاب، CCPO لاہور، تمام RPOs کو ہدایت کی ہے کہ بغیر لائسنس گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ انہوں نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر پیش کرنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کم عمر ڈرائیور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرات کا سبب بنتے ہیں۔ کم عمر ڈرائیوروں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی بند کیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے والدین کو ہدایت کی ہے کہ کم عمر بچوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہر زندگی قیمتی ہے، کمسن ڈرائیور کی ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فلسطینی لڑائی اور کشیدگی 42ویں روز بھی جاری ہے۔ عرب اور عالمی سفارتی کوششوں کے باوجود جنگ بندی کی
कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। गजा में सियोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी ने फलस्तीन में शहादतों की दास्तान रकम कर दी है। बमबारी में 76,000 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई, जबकि शहदा की मजमूई तादाद 11,500 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 4,660 बच्चे, 3,000 से जायद खवातीन शामिल। काबिज फौज के अलमगाजी में फजाई हमले के दौरान मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 26 मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके। इसराइली हमलों में 29,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए, जबकि 1,770 बच्चे लापता होने की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनी हिलाल अहमद ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा की पट्टी में मामदानी अस्पताल, जैसे अल अहली अरब अस्पताल भी कहते हैं, दावा बोला। हिलाल अहमद ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि इसराइली टैंकों ने अस्पताल को घेरे में ले रखा है। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि जनरल पैट्रिक सैंडर्स दीगर मसरूफियात के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक ये मामूल की दिफाई मसरूफियात का दौरा है। दोनों ममालिक के दरमियान ये दिफाई मसरूफियात अहमियत की हामिल हैं। जनरल पैट्रिक सैंडर्स लाहौर में बरतानिया और पाकिस्तान की पोलो टीमों का मुकाबला भी देखेंगे। हाई कमीशन का ये भी बताना है कि ये दौरा बरतानिया के पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात कायम रखने के अज़म का इजहार है। 12 माह में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुतअद्दिद दिफाई तबादले भी हुए हैं। मुश्तरका नेवल तरबियत और दोनों ममालिक के दरमियान आला फौजी दौरों के तबादले भी हुए। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक 6 माह कबल भी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने GHQ में यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई थी। रावलपिंडी अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक के लिए बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में साबिक वजीर आजम व चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत मुलतवी की गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत के जज अव्वल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ सिफारती साइफर गुमशुदगी केस की समाअत की है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI की बहनें भी अडयाला जेल पहुंची थी। बाद में खसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना की रोशनी में समाअत मुलतवी की गई। सरकारी प्रोसिक्यूशन की जानिब से गवाह भी पेश नहीं किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया ममालिक होने का किरदार अदा किया है, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराख दिली से अफगान बशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर भी सराहा गया है। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा इनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तूरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फरागदली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। 16 नवंबर को 1890 गैर कानूनी अफगान बशिंदे अपने मुल्क चले गए। 1890 अफगान शहरियों में 476 मर्द, 508 खवातीन और 906 बच्चे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 186 गाड़ियों में 325 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,30,474 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है।
और आपको बताएं कि मणिपुर के बागी कबाइल ने अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है। मवान टोम्बंग के मुताबिक अगर 2 हफ्तों में मोदी सरकार ने हमारे जायज़ मुतालबात पूरे ना किए तो हम अपनी खुद मुख्तारी हुकूमत कायम करेंगे। ज़रा के मुताबिक मणिपुर में फसादात को शुरू हुए 6 माह से जायद का अरसा हो चुका है। इस दौरान 1000 से जायद अफराद हलाक और 6000 से जायद बेघर हुए हैं। मणिपुर में अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार भी हलाक हो चुके, जबकि 5000 से जायद सरकारी हथियार लूटे जा चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक 1 लाख से जायद एहलकार तैनात करने के बावजूद हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर। मिंट के मुताबिक मणिपुर में जारी खाना जंगी पर काबू पाने में मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार मणिपुर में जंग और पुरतशद्दुद वाक़यात खत्म करने में संजीदा नहीं है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए हैं। मणिपुर के कबाइल ने मोदी सरकार और कोकी कबीले के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने मुतादिद बार मोदी सरकार से हालात को काबू करने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की कहानी स्याह हरूफ में लिखी जाएगी। 1971 की जंग में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के झूठे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बेगुनाह और नहत्ते पाकिस्तानियों पर दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहिनी की जानिब से किए गए मजालिम और कत्लेआम का इल्ज़ाम पाकिस्तानी आर्मी पर लगाया गया। 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले पाक फौज के कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल फर्क ने 1971 की जंग की आप बीती सुनाते हुए बताया कि मशरकी पाकिस्तान राइफल्स ऐसी फोर्स थी जो 1500 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो कि तमाम सरहदी इलाकों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर फैली हुई थी। रिटायर्ड कर्नल जफर इकबाल फर्क का कहना था कि इस फोर्स में 95% बंगाली, 4% बहारी और 1% मगरबी पाकिस्तानी शामिल थे। 2 और 3 मार्च के दरमियानी शब उन्होंने चटागांग में पहाड़ के मकाम पर सैकड़ों लोगों को कत्लेआम किया। रिटायर्ड कर्नल जफर इकबाल ने मजीद कहा कि शर्मिला बोस ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तानियों ने कत्लेआम नहीं किया था। जब हम जंगबंदी की जानिब बढ़ रहे थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पर चुन चुन कर पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को कत्ल किया और एक इज्तमाई कब्र बना दी। काश के बेचारे बहारियों, बंगालियों और पाकिस्तानियों की मसखशुदा लाशें बता सकती कि कैसे बेरहमी से हिंदुस्तानियों ने उनको कत्ल किया था। बहारियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि हमारे उस वक्त के रिकॉर्ड में या तो मशरकी पाकिस्तानी थे या मगरबी पाकिस्तानी। मक्ती बाहिनियों और भारतीय अफवाज के हाथों 2 से 2.5 लाख बंगालियों का कत्लेआम भी किया गया। रिटायर कर्नल जफर इकबाल फरूख ने मजीद कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है ये सब किसने किया और ये सब वाकयात कैसे रोनुमा हुए, क्योंकि ज्यादातर वाकयात तो पाकिस्तानियों के खाते में लिख दिए गए हैं जो कि बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है। और आपको बताएं कि एएसपी चमकनी सैयद तलाल अहमद शाह ने चार्ज संभाल लिया। उन्होंने पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ मीटिंग की और थाना चमकनी चौकी, वहीदाबाद चौकी तरनाब और मोटरवे नाकाबंदी का दौरा किया है। एएसपी चमकनी सैयद तलाल अहमद शाह ने मीटिंग के दौरान पुलिस अफसरान और एहलकारों को मौजूदा हालात के पेश नज़र और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की हैं। दौरे के दौरान एएसपी चमकनी सैयद तलाल अहमद शाह ने सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने समेत रिकॉर्ड, रोजनामचा, सफाई सुथराई, सरकारी असलहा और रजिस्ट्रार चेक करने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया है। उन्होंने पुलिस अफसरान और एहलकारों को सख्ती से हिदायत करते हुए कहा कि अपनी हिफाजत करके दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। उन्होंने पुलिस अफसरान व एहलकारों को सख्ती से हिदायत करते हुए ये भी कहा कि थाना आने वाले साइलिन और बुजुर्गों की बर वक्त दादरसी की जाए, शहरियों की इज्जत नफ्स का खास ख्याल रखा जाए। एएसपी चमकनी सैयद तलाल अहमद शाह ने मुहर्रर स्टाफ से नफरी स्टेटमेंट, हवालात में बंद मुलजमान और रिकॉर्ड के बारे में आगाही भी हासिल की। इस मौके पर एएसपी सैयद तलाल अहमद शाह ने मोटरवे नाकाबंदी पर सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से बातचीत करते हुए हमा वक्त मुस्तैद और चौकस रहते हुए
समाज दुश्मन अनासर और दीगर जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखने की भी हिदायत की है। आपको बताएं कि पिंडी खेप शहर की मारूफ समाजी वर्कर सायरा यास्मीन को ऑनलाइन बिजनेस की मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया है। ये ओहदा उन्हें 6 माह में शानदार कारकर्दगी पर दिया गया। ये बात नौजवान और पुरअज़म सायरा यास्मीन ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में तालीम याफ्ता नौजवानों बिलखसूस खवातीन के लिए ऑनलाइन बिजनेस में लाखों रुपए माहाना कमाने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अगर इंसान काम करने का पुख्ता इरादा कर ले तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस में उनके 70 से ज्यादा क्लाइंट्स भी हैं, जिनमें से ज्यादातर खवातीन हैं जो घर बैठे माहाना लाखों रुपए बाइज्जत तरीके से कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि फॉरएवर लिविंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 170 से ज्यादा ममालिक में सेहत के मैदान में काम कर रही है, जिसको काम करते हुए 45 साल हो चुके हैं और दुनिया भर में इस कंपनी के 6000 से ज्यादा दफातर भी मौजूद हैं। सायरा यास्मीन ने बताया कि उन्होंने 6 माह कबल इस कंपनी में काम करना शुरू किया और कलील अरसे में मुकर्रर अहदाफ भी पूरा किया, जिस पर कंपनी ने उन्हें दुबई में मुनक़िदा तकरीब में मदऊ किया और उन्हें मैनेजर के ओहदे पर तरक्की देते हुए अवार्ड और बोनस भी दिया। सायरा ने कहा कि ये तमाम कामयाबियां उनके वालिदैन की दुआओं के साथ हौसला अफजाई करने, मेरे पुख्ता इरादों, शब रोज की मेहनत और अल्लाह ताला की खसूसी मदद से ही मुमकिन हुई है। और आपको बताएं कि 15 और 16 नवंबर को इस्लामाबाद में मुल्क के अहम थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से मार्गला डायलॉग का इनेकाद किया गया। बैनुल अक़वामी और मुल्की मुकर्ररीन और शुरा में सफारतकार, पॉलिसी साज, प्रोटेक्शंस और माहिरीन इक़्तिसादियात और मीडिया पर्सनस भी शामिल थे। तकरीब के पहले सेशन का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। सदर मुमलिकत ने निशानदही की कि मौजूदा दौर की तारीफ बड़ी ताकतों के बाहमी मुकाबले की वजह से पैदा होने वाली जियो पॉलिटिकल तब्दीलियों के साथ की जा सकती है। सदर मुमलिकत ने दुनिया के निज़ाम के इर्तिका पर तफसीली गुफ्तगू की। सदर मुमलिकत ने पायदार अमन और खुशहाल के लिए तजारत, राबतों और शराकतदारी को तरजीह देने पर भी जोर दिया। मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी अक़लियतों पर मज़ालिम के डोजियर्स की नकाब कुशाई भी की गई है। डोजियर्स में हिंदुस्तान में मज़ालिम की सूरत हाल को गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ और एदाद शुमार के साथ पेश किया गया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ख़िते में सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल की वजह से भारतीय हट धर्मी है। भारत का रवैया अक़लियतों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुतरादिफ ही है। इस मौका पर कौमी सलामती, बैनुल अक़वामी अमूर और मीडिया के माहिरीन ने मुख्तलिफ इजलास में अपने ख्यालात का इजहार भी किया। इस मौके पर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि कौमी सलामती की पॉलिसी तमाम सरकारी महकमों और वजारतों के साथ साथ फौज की अरा को शामिल करके बनाई गई थी। फहाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को जीरो सिम गेम से निकाल कर मुल्क में इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। साबिक सफीर आसिफ दुरानी ने कहा कि जाहिर शाह की 4 दुहाइयों के अलावा मगरबी अफगानिस्तान ने कभी अमन नहीं देखा। तेहरान बराह रास्त पाबंदियों की जद में है, जबकि इस्लामाबाद को बिलवास्ता पाबंदियों का सामना है। पाकिस्तान के लिए चीन ही एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान ने तमाम मुश्किल हालात का सामना किया है जो इसकी लचक का सबूत सामने लाते हैं। साबिक सफीर आसिफ दुरानी ने मजीद कहा कि भारत में इंतखाबात के मौके पर हिंदू तो नजरियात का सामना करना पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल अमर है। इस मौके पर शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान को पड़ोसियों से दोस्ती और वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि हम कर्जों के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं और कर्ज की सर्विंग की अदायगी कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल 7वें नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर नजरसानी की भी जरूरत है। 2018 से 22 तक पाकिस्तान को 10 खरब रुपए से ज्यादा की रकम की फराहमी भी मुयस्सर थी। मुफ्ता इस्माइल आलमी तजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 0.13% है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बड़े आपको बताएं कि कसूर में पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज के गंदे और केमिकल से मिले जहरीले पानी से काश्त की जाने वाली सब्जी उगाने वालों के खिलाफ एक्शन।
डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कसूर के नवाही गांव निजामपुरा में काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। 2 एकड़ पर काश्त जहरीली सब्जियों की फसल को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा कि सीवरेज और केमिकल के जहरीले पानी से काश्त सब्जियों को मंडियों में सप्लाई किया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम उन्नास को सेफ फूड मुहैया करने के लिए दिन रात कोशा है। जहरीले पानी से उगी सब्जियों का इस्तेमाल मूजी बीमारियों में मुब्तला करता है। राव उबैदुर्रहमान ने मजीद कहा कि खेत से मंडियों तक महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी भी की जा रही है। अवाम उन्नास अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम सेहत दुश्मन अनासर की इतला पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर दें। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की गवादर के करीब साहिल समंदर पर बड़ी कार्रवाई। एएनएफ ने साहिल समंदर तक अपनी रसाई को बढ़ाते हुए कार्रवाई की है। कार्रवाई बहेरा अरब के करीब बलूचिस्तान में साहिल समंदर से 6 किलोमीटर के फासले पर की गई है। दौरान कार्रवाई 260 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पॉली क्लिनिक में आए मरीज खवार होने लगे। अमला गायब और इतने बड़े अस्पताल में बेड्स की कमी, जहां आम शहरी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, वहीं पर पॉली क्लिनिक में मुहाफिजों को भी खवार करने लगे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हिबा अब्बासी से। जी हिबा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? नहीं है, एक बेड पर दो मरीजों को रखा जाने लगा है। अस्पताल इंतजामिया का रवैया भी मरीजों और उनके लवाहिकीन के साथ ठीक नहीं होता। ओटो और ईसीपी और ईसीजी की भी सहूलत मौजूद नहीं है। सिर्फ पॉली क्लिनिक नहीं बल्कि पिम्स का भी यही हाल है। इतने बड़े 2 सरकारी अस्पताल के बहुत बुरे हालात हैं। अगर आम आदमी की बात करें तो उनकी रिहाई सुनने वाला कोई नहीं है, पर मुल्क के मुहाफिजों को भी खवार करने लगे हैं। कांस्टेबल राजा इफ्तिखार का पॉली क्लिनिक से शिकवा भरा पैगाम भी जारी हुआ है, जो कि वीडियो में देखा जा सकता है। किस तरह से पॉली क्लिनिक अस्पताल में वो इलाज की गर्ज से आए और क्या सूरत हाल हुई वहां पर। किस तरह से सरकारी अस्पताल जिसमें लोग इलाज मुआवजा के लिए आते हैं और मरीजों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, जिस पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसी को कोई फिक्र नहीं। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पर मरीजों को दूर दराज के इलाकों से भी रेफर किया जाता है, पर यहाँ इस तरह से उनको डील नहीं किया जाता। यहाँ आए मरीज परेशान है, उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। ये कोई नया वाकया नहीं है। कभी मशीनें चोरी हो जाती है तो कभी डॉक्टर खुद चोरी करके ले जाते हैं अस्पताल से चीजें। जैसे डॉक्टर अमानुल्लाह खान को कोरोना की किट की चोरी के स्कैंडल में अरेस्ट भी किया गया था। मजीद पॉली क्लिनिक अस्पताल में करप्शन अरूज पर है। आला हुकाम से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की आबादी ज्यादा और बेशुमार लोग आते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया हिबा अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकपुर शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खुद देहात और खेतों में पहुंच गई हैं। फसलों की बाकियात जलाने वाले जमींदार को मौके पर 5,55,000 जुर्माना भी किया। फसलों की बाकियात जलाने पर 5 मुकदमात दर्ज और 10 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। कबूला शरीफ में 69 फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानिब से मज़ालिम के खिलाफ कबूला शरीफ के निजी स्कूल की जानिब से फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। स्कूल्स के उसातिज़ा के साथ तलबा और तालिबात ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसके अलावा परचम भी थामे थे जिन पर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों की हिमायत के नारे दर्ज थे। तलबा का कहना था कि आलम इस्लाम के 57 ममालिक को यकज़बान होकर फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नन्हे मासूम बच्चों को वहशियाना बमबारी करके शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर नोटिस ले और फौरी जंग बंदी करवाए। मीरपुर खास में तालुका एजुकेशन ऑफिसर शहला परवीन की जानिब से अफवाह स्कूल में गाला स्पोर्ट्स मुनक्किद किया गया। गाला स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ गेम्स भी करवाए गए, जिसमें तालुका के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा भी लिया। स्पोर्ट्स गाला में पहली पोजीशन अफवाह गर्ल्स हाई स्कूल के तालिबात ने हासिल की, जबकि दूसरी पोजीशन बेनजीर हाई सेकेंडरी स्कूल और तीसरी पोजीशन इकरा हाई स्कूल को मिली है, जिसमें तमाम जीतने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा।
میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص گرلس گورنمنٹ ہائی اسکول اپوا کے اندر موجود ہوں، جہاں اسپورٹ گالا کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں میرپور خاص کی مختلف اسکولوں کے جو بچے ہیں وہ آج کے ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ یہاں ٹیچر موجود ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ چاہوں گی کہ یہ ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہے اور اس طرح کی جو اسپورٹس کی جو ہماری گیمز ہیں بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ بچوں کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی نشوونما کا بہترین ذریعہ ہے۔ تھینک یو۔ یہ پروگرام جو گالا والن کی طرف ہے، منسٹری آف اسپورٹس کی طرف ہے، اساں کے لازم ہے تو شاگردن کے ذہنی نشوونما ہے ان جی بہترین صحت کے لیے یہ پروگرام ضرور ہون کپن، یہ ایکٹیویٹیز اسپورٹس جی ہون کپے، تنहिं करे یہ اسپورٹس وری بھی اجاگر کئی وے۔ اساں یہ چاہینداسیں انشاء اللہ اॻिते بھی जेके मुक़ाबला थींदा ऐं वरी टूर्नामेंट रखिया वेंदा ऐं इन खे असां कंटिन्यू करणु चाहींदा शागिर्दनि में ज़हनी नशोनुमा जे हवाले सां ऐं उन्हनि जो शौर बि वधे, उनमें दिलचस्पी वधे ऐं उन्हनि जी तइलीम जी तरफ़ भी इन्हनि सां ध्यानु ॾिनो वेंदो इंशाअल्लाह ताला। मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसा ही हो और ना बहुत खुशी हुई मुझे, मैं सेकंड पोजीशन आई हूँ। जो मुझसे गलती हुई है इंशाल्लाह दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगी। बहुत मज़ा आया। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अपुआ मीरपुर खास से स्कूल में पढ़ती हूँ और मैट्रिक क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ और हम थ्रो बॉल में फर्स्ट पोजीशन आए और हाई स्कूल में गए थे जो 2 स्कूल से ना फर्स्ट पोजीशन लिए और थैंक यू, बस यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से, गाला गेम्स हैं ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसकी टीम की जो सिलेक्शन की है उसके मुकाबला जात जो हैं कराची में फाइनल्स होंगे और डिस्ट्रिक्ट की और सखर में मुहाफिज़ी महफूज नहीं। सखर के ताना सी सेक्शन के इलाका नुमाइश चौक पर वाक़िया पुलिस चौकी की इमारत इंतहाई मखदूश हो चुकी है। चौकी की मरम्मत का काम 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी नहीं करवाया जा सका, जिसके बायस पुलिस चौकी में तैनात पुलिस एहलकार खौफ के साए में ड्यूटी देने पर मजबूर हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी। जी यासिर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, सकर में मुहाफिज भी महफूज नहीं है। हम इस वक्त सकर के थाना सी सेक्शन की चौकी जो कि पुराना सकर के इलाके नुमाइश चौक पर वाक़ है उधर मौजूद है, जो गुज़िश्ता बरसात में मुकम्मल तौर पर तबाह हाल हो चुकी है। इसकी तबाही के मंजर का आलम यह है कि ना कि इसका स्ट्रक्चर बचा है और ना ही जो है यहाँ पर कोई बैठने का निज़ाम है। आने वाले मुल्ज़िम को कहाँ रखा जाता है ये तो मालूम नहीं। अलबत्ता पुलिस वालों के अपने बैठने की भी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड बिल्कुल ओपन आसमान तले जो है मौजूद है। अगर बरसात हो जाए रिकॉर्ड भी मुकम्मल तौर पर है, जिसके अलावा यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। बताया गया कि गश्त पे हैं, इलाका में के ना है। हम लोग सुकून से सोते हैं कि मुहाफिज मौजूद हैं, तो हमारी हिफाजत हो रही है, मगर यहाँ तो मुहाफिज भी महफूज नहीं है। हम तो अपने बच्चों को ये भी तलकीन हैं कि इस चौकी के नज़दीक से भी ना गुजरा करें, कहीं ऐसा ना हो कोई दीवार गिर कर कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो इलाका में किनों का कहना है कि SSP सकर इस चौकी का नोटिस लेकर इसकी खस्ता हाली मरम्मत का जो है जल्द से जल्द काम शुरू कराएं, ताकि जो है वो पुलिस का मुलार बुलंद हो सके। महकमा ज़राअत ऑफिस चोरकोट में खाद डीलर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में हिदायत दी गई कि DAP खाद को कंट्रोल रेट पर सेल किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर ताहिर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज सालिहा के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे लेंगे। जी बिल्कुल मौजूद हूँ महकमा ज़राअत ऑफिस शोरकोट में। आपको बताते चलो महकमा ज़राअत ऑफिस शोरकोट में आज एक फर्टिलाइजर डीलर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खाद DAP की शॉर्टेज है उसके हवाले से डीलर्स ने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनका इज़हार किया। और मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर एजाज सालिहा साहब, मुझे साहब बताइएगा कि DAP जब जरूरत होती है वो शार्ट हो जाती है, जब यूरिया जरूरत होती है यूरिया शार्ट हो जाता है, ये ऑकवर्ड दोनों चीजें चल रही हैं, इसमें सलाह क्या किया है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली गुजारिश तो ये है कि इस वक्त फास्फोर्सी खादें हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबिलिटी है पूरी तहसील के अंदर। DAP के अलावा हमारे पास SSP है, नेट्रोफास है, वो भी फास्फोर्सी खादें हैं और इसमें किसी शॉर्टेज के कोई ख़तरा नहीं है। डीलर्स की बुकिंग भी हुई है, लेकिन अभी सप्लाई नहीं आई। उम्मीद है कि जैसी सप्लाई आएगी तो DAP की शॉर्टेज वाली जो बात है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हमारी डीलरों के साथ मीटिंग का मकसद यही था कि आज के हवाले से कि कोई डीलर ओवर प्राइसिंग न करे, जो नोटिफाइड रेट है उन्हीं पर वो काश्तकारों को खादें दे। सब बताइएगा, आपने कहा कि नोटिफाइड रेट्स पे दिए, नोटिफाइड रेट पे मार्केट में नहीं दी जा रही। डीलर से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं हम जो ऑफ द रिकॉर्ड हम परचेज करते हैं, हमें महंगी मिलती है तो उसको सेल करते हैं। इसके बारे में क्या इक़दाम किए महकमे ने?
नहीं, हमारी वाज़ेह डायरेक्शन है कि हमने जो भी खाद यहाँ मौजूद है दुकानों पर या जहाँ भी है वो नोटिफाइड रेट पे ही वो फरोख्त करेंगे। इस हवाले से अगर कोई नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मौसम सरमा के आगाज के साथ ही कश्मीरी शॉलों की मांग में भी इजाफा हो चुका है। मुल्क भर से मलका कोहसार आने वाले स्याह इन स्पेशल शॉलों को अपनी फैमिली के लिए बतौर तोहफा लेकर जाते हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रईस अब्बासी। जी बहुत शुक्रिया। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मलका कोहसार मरी में कश्मीरी शालों की मांग में इजाफा हो चुका है। तूलो अर्ज से बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीरी शाल ख़रीदने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। मेरे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं तो उनसे ओपिनियन लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है और इस वक्त मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहे हैं। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया रेस भाई। हमारे पास इस वक्त कश्मीरी शालें मौजूद हैं। कश्मीरी शालें, स्वाति शालें, बलोची शालें, पश्मीना की सारी वैरायटी हमारे पास मौजूद है। इंडियन शालें हमारे पास, और प्राइस इनकी 750 से लेकर हर प्राइस तक जाती है 20,000, 30,000, 50,000 तक जाती है। इस तरह की हमारे पास सारी वैरायटी है। पश्मीना की शालें लगी हुई हैं। अभी तो इसका सीज़न भी जो है शुरू हो गया और इसकी काफ़ी मांग है और काफ़ी अच्छा हमारा जो है ना इन शालों का अच्छा काम है। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बातें सुनी हैं। इनका यही कहना था कि इस वक्त जो हमारे पास शालें मौजूद हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ में मौजूद हैं और इनकी जो प्राइस है वो 700 से लेकर 50,000 तक जा रही हैं और बड़ी तादाद में टूरिस्ट शौक़ से कश्मीरी शालें ख़रीद रहे हैं तोहफे के तौर पर। और ना सिर्फ ये मलका कोहसार पाकिस्तान में भेजी जा रही हैं बल्कि दुनिया भर में ये तोहफे के तौर पर जो शालें हैं वो भेजी जा रही हैं। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। इसी पर मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब साबिर से। जी अयूब बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारे साथ इस वक्त सब्जी मंडी में आए एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। भाईजान, सब्जी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे? सर जी, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली जो आइटमें हैं, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चें वगैरह, उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब आवाम सब्जी खरीदने आती है, वो बेचारी रेट सुनकर इतनी परेशान हो जाती है। गरीब आदमी बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने से कासिर है। इस कदर महंगाई हो चुकी है, आवाम महंगाई की चक्की में इस कदर पिस चुकी है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए कासिर हो चुका है। अल्लाह को हमसे गुजारिश है, आवाम के हाल पर रहम किया जाए, तरस किया जाए और महंगाई की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इस आवाम को बेरोजगारी से मजीद परेशानी से बचाया जाए। जैसा कि हमने शहरी से उनका मौक़िफ़ जाना तो शहरी का यही कहना है कि आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई से पहले ही आम आदमी परेशान है, तो सब्ज़ी की कीमतों ने जो है आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहरों ने हुकूमत वक्त से मरोट में पेट्रोलिंग पोस्ट 340 पर पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर का आगाज कर दिया गया। मीडिया से बातचीत में इंचार्ज पोस्ट शमसुल हक ने कहा कि दिन रात आवाम की खिदमत और उन्हें सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा रहेंगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अतहर बशीर बाजवा से। जी अतहर बशीर बाजवा, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त पेट्रोलिंग पोस्ट 340 रोड पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आज पुलिस रिपोर्टिंग सेंटर का जो है वो आगाज हो गया है। तो मेरे साथ इस वक्त यहाँ का इंचार्ज शमसुल हक साहब मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से वो बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी जनाब, बिल्कुल जिस तरह के आपने बताया कि पेट्रोलिंग पोस्ट 340 मरोट तहसील फोटापास डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पे रिपोर्टिंग सेंटर का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया है। तो इस हवाले से जनाब आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब की खुसूसी काबिज से और हमारे एडिशनल आईजी साहब पेट्रोलिंग राव अब्दुल करीम साहब और डीआईजी साहब डॉक्टर अतर वहीद साहब की ये खुसूसी काबिज और अहकामात के मुताबिक हर पेट्रोलिंग पोस्ट ऑल पंजाब रिपोर्टिंग सेंटर का जो है ना वो आगाज कर दिया गया है। अच्छा, इस रिपोर्टिंग सेंटर के हवाले से इसमें यह है कि आप इसमें किसी भी किस्म की गुमशुदगी की रिपोर्ट, अपना किरायानामा, दुकान का, मकान का वो कर सकते हैं। FIR की कॉपी है
या किसी भी किस्म की चोरी की रिपोर्ट, FIR की कॉपी, रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की उसमें, या प्राइवेट मुलाजमीन हैं जैसे, उनका इंदराज यहाँ पे रिपोर्टिंग सेंटर पे हो सकता है। हमारा सुबह से लेके शाम तक रिपोर्टिंग सेंटर या रात में भी 24 घंटे यहाँ पे एक ऑपरेटर मुहर्रर के साथ मौजूद होता है जो काम करता है इस हवाले से। तो इस हवाले से ये है कि खुसूसी तौर पे ये अफसरान वादा के अहकामात के मुताबिक इसका आगाज 2 दिन पहले कर दिया गया है। अब ये 24 घंटे दिन रात काम कर रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि अवाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने हरीपुर का दौरा किया। उन्होंने वकला के लिए नए दफातर की बिल्डिंग का संगे बुनियाद भी रखा। बार क्लब का भी इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं हरीपुर से हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा है कि बार और बेंच में सिर्फ जिम्मेदारियों का फर्क है। वकला ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है ने जहां जुडिशरी की जरूरत होगी हम इनका साथ देंगे, क्योंकि वकालत ही हमारा मादरे प्रोफेशन है। जजेस की तैनातियां मुकम्मल मेरिट और शफाफ होंगी। हरीपुर बार से दरीना रिश्ता है। बतौर एडिशनल सेशन जज और जज लेबर कोर्ट हरीपुर में तैनात रहा, जिसके दौरान चैरिटी के बेपनाह काम किए और हजारों तलबा को किताबें फराहम की, अस्पताल में ब्लड डोनेशन सेंटर का क्याम और जेल में एक्सरे मशीन फराहम की। कोशिश करते हैं कि रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ लॉ के काम करें। ये सिर्फ अदलिया की जिम्मेदारी नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर और DPOs पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी रूल ऑफ लॉ को ये काम करने की कोशिश करें। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर के वकला से खिताब करते हुए किया। सेशन जजेस की बात है, जहाँ तक सिविल जजेस साहिबान की बात है, तो अभी हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया था, उसका काफ़ी टाइम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिटन एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वालिफाई कर गए हैं और अनकरीब हम इंशाल्लाह उनकी जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। शायद आपके इस बार से भी उसमें से अच्छे वकला हों, तो ये बिल्कुल जहन में रख दीजिए इंशाल्लाह कि आखिरत के रोज़ में जिम्मेदारी लेता हूँ कि कोई भी अगर हम किसी को जज लेंगे वकला में से, तो उसमें कोई सिफारिश भी नहीं होगी, कोई दूसरा आंसर भी नहीं होगा, बल्कि मैं दुनिया और आखिरत की जिम्मेदारी लेता हूँ कि इंशाल्लाह मेरिट और मेरिट की बुनियाद पर होगा। उन्होंने वकला के लिए दफातर की बिल्डिंग और संग बुनियाद और बार क्लब का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के जस्टिस कमरान हयात मियां खेल, जस्टिस मोहम्मद इजाज, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट इनामुल्लाह वजीर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हरीपुर शहनाज हमीद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एबटाबाद इख्तियार खान, सदर हाई कोर्ट बार। अल्लाह ताला ने सवात की हसीन वादी कलाम को कुदरती हुस्न से खूब नवाजा है। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो या खज़ां, हर मौसम में यहाँ के रंग अलग ही नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मोतर अली की इस रिपोर्ट में। अल्लाह ताला ने सवात की हसीन वादी कालाम को अपने कुदरती हुस्न से बहुत ज्यादा नवाजा है। गर्मियां हो या सर्दियां, बहार हो या खिजान, हर मौसम में यहाँ के कुदरती हुस्न बदलते रहते हैं और हर मौसम का हुस्न अलग होता है, जिससे पूरे पाकिस्तान से आने वाले सयाह खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस तालाब को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और हम इस तालाब के अंदर ब्लू वाटर में हैं और यहाँ पे हर पाकिस्तानी को आना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। और हम कराची से आए हुए तो हमने कलाम की तरफ रुख किया, अल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, अल्लाह ने अपनी कुदरत का भरपूर जो है नज़ारा वो कलाम में रखा हुआ। कालाम की हसीन वादी ब्लू वाटर एक हसीन तरीन वादी है। मौसम ख़िज़ां में यहाँ दरिया का पानी कम हो जाता है, वहाँ दरिया और वादी के कुदरती हुस्न में मज़ीद निखार आ जाता है। यही वजह है कि साल के 12 महीने स्वात की हसीन वादी कालाम में सयाहों का आना जाना रहता है और ख़ुसूसन ब्लू वाटर में दुनिया की लजीज तरीन मछली ट्राउट का खुद शिकार करके खाने का मजा ही कुछ हो। हसीन वादियों में सयाहों की रसाई यकीनी बनाने के लिए अब हुकूमत वक्त ने रोडों की तामीर भी शुरू कर रखी है, ताकि सयाह ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर इन हसीन वादियों में खो जाएं। मोहम्मद
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बड़ा फैसला सामने आ गया। आईजी पंजाब को बगैर लाइसेंस गाड़ी, मोटरसाइकिल और कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का हुक्म जारी कर दिया है। अब न सिर्फ चलान होंगे बल्कि मुकदमा दर्ज करके जेल की हवा भी खाना होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में व्हीकल चलाने वालों के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई करने का हुक्म किया गया है और बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने जो है वो आज 11 बजे जो है वो बाकायदा तौर पर सीटीओ लाहौर और दीगर पुलिस अफसरान को बुलाया और बड़ा वाज़े कहा कि किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बाकायदा बगैर लाइसेंस और छोटी उम्र के जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी और चलान के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जिस तरह से मुकदमात के हवाले से देखा गया तो सीटीओ लाहौर ने पहले से ही जो है वो कम उम्र बच्चों को जो है वो गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया हुआ था, तो उसकी जो है वो बाकायदा तौर पर जमानतें भी मंजूर की जा रही थी। तो लिहाजा आज जो है वो सुबह सवेरे ही अली ज़िया बाजवा जो कि जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें बड़ा वाज़े कहा है, चाहे वो कोई जस्टिस का बेटा हो या किसी आला सीनियर पुलिस अफसरान का बेटा हो या कोई भी ताकतवर इंसान हो, तो उसके बेटे को किसी भी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तो दूसरी जानिब छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे, गाड़ियां चलाते थे, उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि जो उनका CRO रिकॉर्ड बनेगा, जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, ये हमारे जो है वो पाकिस्तान का आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। उनके खिलाफ जब CRO रिकॉर्ड बन जाएगा, ना तो वो बाहर के मुल्क ट्रैवल कर सकेंगे और ना ही किसी अच्छी नौकरी पर जो है वो फाइज हो सकेंगे। तो इसी पर जो है वो बड़ा रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है शहरियों की जानिब से भी और कहा जा रहा है कि कम उम्र बच्चों को इस तरह से पकड़ के गिरफ्तार करना, हवालात में बंद करना, उनका CRO रिकॉर्ड बनाना, ये सरासर जो है वो जुल्म और ज्यादती है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो लाहौर की सड़कों पे हर सिग्नल के ऊपर, हर चौक में जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के साथ एक थाने का जो है वो सिपाही भी खड़ा है, एहलकार भी खड़ा है, जो कि मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले तो बगैर हेलमेट के चलान किए जा रहे थे, अब तो जिसके पास लाइसेंस होगा वही गाड़ी चलाएगा, वही मोटरसाइकिल चलाएगा और बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जाएंगी। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं होगा या छोटी उम्र का ड्राइवर होगा तो गिरफ्तारियां जो है वो करके जेलें भरी जाएंगी। आज भी लाहौर के बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर कम उम्र ड्राइवरों को और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सीटीओ लाहौर से जब मेरी बात हुई थी तो उनका भी यही कहना था कि कम उम्र बच्चे जो है वो व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की है कि अपने बच्चों को जो है वो छोटी उम्र के बच्चों को जो गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी ना दें, बाकायदा तौर पर उम्र के मुताबिक इनका जो है लाइसेंस इशू करवाया जाए ताकि ये सेफ ड्राइव कर सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। MD वासा गुफरान अहमद ने एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। क्लोरीन चोरी केस में सरवरनत के बाद मजीद 2 सब इंजीनियर्स मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल किए गए सब इंजीनियर्स का ताल्लुक मिस्री शाह सब डिवीजन और शादबाग सब डिवीजन से है। वाज़ेह रहे कि कोहिनूर न्यूज ने सबसे पहले क्लोरीन चोरी की खबर ब्रेक की थी। वजीर आला के अहकामात पर स्मोक के खात्मे के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुतहरिक है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 माह के दौरान 6,961 गाड़ियों को थानों में बंद करवाया गया है, जबकि रवां माह अब तक 11,000 जबकि रवां साल 47,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। गजा मार्च लाहौर की दावती मुहिम जारी। दार अरकम स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन की जानिब से इजहार यकजहती फलस्तीन रैली और इसराइल की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम पर तस्वीरी नुमाइश। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलेमान बलोच की शिरकत हुई। इसी पर मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। गजा मार्च लाहौर की दावती मुहिम जारी। दारा अरकम स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन की जानिब से इजहार यकजहती फलस्तीन रैली व इसराइल की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालिम पर तस्वीरी नुमाइश। उम्मीदवार PP 168 अहमद सलेमान बलोच
जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान वकास जाफरी, नायब अमीर जमात इस्लामी PP 168 जहांगीर एसार, जुबैर अहमद, उस्तादा और तलबा की जानिब से गजा फंड जमा किया गया। गजा फंड अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले किया गया। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए उस्तादा और तलबा की जानिब से रैली भी निकाली गई। गजा मार्च लाहौर में हर तबका शिरकत कर रहा है। शहर लाहौर साबित करेगा कि इनके दिल मजलूम फलस्तीनियों कौम के साथ धड़कते हैं। इसराइल जालिम है और जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। पूरे मुल्क में महकमा बिजली की डिस्कोज में इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में कारकर्दगी के लिहाज से लेस्को आज भी नंबर 1 पर कायम है। बिजली चोरों, डिफॉल्टर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां तो अमल में लाई जा चुकी हैं, मगर जिन मेहनत कशों की वजह से लेस्को नंबर 1 है, उनके जहनी सुकून और दिली इत्मीनान के लिए हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नजर नहीं आता। फील्ड में हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर काम हो रहा है, वो भी बगैर छुट्टी के। फील्ड स्टाफ आज भी खौफजदा है, मायूस और परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा। साजिद काज़मी से मज़ीद तफसीलात लेंगे। साजिद काज़मी, अपडेट कीजिएगा। हेलो, साजिद काज़मी से मज़ीद तफसीलात लेंगे। साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी कोहिनूर, CEO लेस्को शाहिद हैदर और CSD लेस्को राय असगर की लीडरशिप में मुल्क भर की डिस्कोज में कारकर्दगी के लिहाज से लेस्को आज भी नंबर 1 पर है। बिजली चोर, डिफॉल्टर्स और सहूलतकार जान बचाते नजर आते हैं, क्योंकि चोरों, डिफॉल्टर्स और सहूलतकारों के खिलाफ बगैर किसी रियायत के सख्त तरीन कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जो काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। याद रहे कि 2 माह में तकरीबन 20 के करीब मीटर रीडर और लाइनमैन को नौकरी से निकाला जा चुका है और छोटी मोटी अजियतनाक सजाएं अलहदा हैं। लेस्को की नंबर 1 पोजीशन जिन मेहनत कशों की वजह से मुमकिन हुई, उनके ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान के लिए सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल की जानिब से कोई रिलीफ नजर नहीं आया। फील्ड में हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर काम हो रहा है, वो भी बगैर छुट्टी के। फील्ड में सेफ्टी कोड के मुतकाजी ALM से सिंगल फेस और 3 फेस मीटर कटवाए जा रहे हैं। लाइन स्टाफ बगैर शूज और ग्लव्स के मुतलका SDO की मौजूदगी में बिजली के सिस्टम से खेलते नजर आते हैं। नई भर्ती और डेली वेजेस को रेगुलर नहीं किया जा रहा। गो के CEO शाहिद हैदर ने इस जानलेवा मुजरिमाना गफलत का सख्त नोटिस ले लिया है, मगर वो स्टाफ जो। बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में पटवारी और तहसीलदार के स्केल अपग्रेड करने का फैसला। पटवारी स्केल 9 से बढ़ाकर 11 जबकि 11 से 14 किया जाएगा। नायब तहसीलदार स्केल 14 से 16, तहसीलदार का 16 से 17 ग्रेड तक किया जाएगा। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपग्रेडेशन के लिए समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी। समरी में कहा गया है कि एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, फूड इंस्पेक्टर और उस्ताद की अपग्रेडेशन हो चुकी है। स्केल अपग्रेडेशन के हवाले से रेवेन्यू अमले को नजरअंदाज किया गया। PMS रूल्स 2004 के तहत रेवेन्यू स्टाफ के स्केल अप ग्रेड भी किए जाएंगे। लाहौर कचहरी स्टेशन पर ड्राइवर की गफलत से मेट्रो बस की हादसा पेश आया है। स्टेशन पर ड्राइवर की गफलत से बस स्टेशन प्लेटफॉर्म से टकरा गई, जिससे बस में सवार मुतादिद मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। इस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी और वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने नोटिस भी ले लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर आसिम राजा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हादसे से मुतल्लिक, आगाह कीजिएगा। जी, शाहदरा से गज्जूमता जाने वाली मेट्रो बस कचहरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से टकरा गई। ड्राइवर तेज रफ्तारी से बस को चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है।
कचहरी मेट्रो बस स्टेशन पर रुकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाई थी, लेकिन बस बेकाबू होकर जो उसका प्लेटफार्म होता है उससे टकरा गई, जिससे बस की विंड स्क्रीन भी टूट गई है और बस को काफी नुकसान पहुंचा है। इस पर जो है मुतअद्दिद मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी ने बस हादसे का नोटिस ले लिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने मेट्रो इंतजामिया को फौरी हादसे की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। इब्राहिम मुराद ने तमाम मेट्रो बसों के ड्राइवर के ई टेस्टिंग करने का भी हुक्म दे दिया है। एमडी मेट्रो ने तहकीकात के लिए बस कंडक्टर को तलब कर लिया है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी ने भी ऐसे हादसा की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत की है। मैं बताते थे कि बस के ड्राइवर को मौका से गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया है और मजीद इस पर तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का इंसदाद तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन जारी। MOR हेडक्वार्टर इकबाल खान की ज़ेर निगरानी MCL स्पेशल स्क्वाड की टीमों ने कार्रवाई करते हुए टेम्पल रोड से तजावुज़ात को बहक़ सरकार जब्त कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन इकबाल खान की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन जारी है। MOR इकबाल खान ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिकायत के फौरी इज़ाले और तजावुज़ात के खिलाफ इन एक्शन होना चाहिए। आर्जी तौर पर कायम तजावुज़ात को फौरी हटा दिया गया। इंसदाद तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए